Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today is 26 March and Friday, and we're gonna study the unit number 1 of science, the human organ system. So let's start up with the unit number 1, that is human organ system. So we already know that what human organ system is. We know that our human body is composed of many systems and they perform specific functions. तो डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं ऑर्गन उनके एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो वो परफॉर्म करते हैं. लाइक स्टमक जो है वो डाइजेशन परफॉर्म करता है, हार्ट ब्लड पंपिंग, लंग्स एस्पिरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो in this chapter we're going to study few organs and detailed system of them. Allah says, and eat of what Allah has provided for you, which is lawful and good, and fear Allah in whom you are believers. And here they are asking, from where do humans obtain food? Also name some of the systems in human body. So we all know that we cannot make our own food, and we get the food from plants and animals. And of course, we have already talked about the system. So all living things need energy to perform their activities. So basic thing and the basic purpose of getting or eating the food is to get the energy out of it so that the human body can perform its function. So what do you think from where living organism get this energy? So हमें पता है कि फूड के अंदर ही वो एनर्जी स्टोर होती है, और जब हम फूड को खाते हैं तो आवर ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टेड एंड उस एनर्जी को फिर वो फूड डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उस एनर्जी को फूड में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड देन ह्यूमन बॉडी नीड्स और you know take that energy to perform different functions. So they eat food to get this energy. Human eat a variety of food, but how do human get energy from the food? How do we get the energy? इसके लिए हमें पूरा डाइजेशन का जो है टॉपिक अंडरस्टैंड करना होगा. दैट वी गोना अंडरस्टैंड. ओके. The food they eat contains complex organic molecules such as carbohydrates, proteins, starch, vitamins and minerals. तो जो हम फूड खाते हैं उसमें बेसिकली complex ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, मीन्स कि वो सिंपलर नहीं होते. जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हम वी ईट ब्रेड, वी ईट राइस, पोटैटोज, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. प्रोटीन्स हमारे मीट में होते हैं, हर तरह के. स्टार्च भी इसी तरह पोटैटोज में, राइस में, ग्रेन्स में. वाइटामिन हमारे एंड मिनरल्स हमारे जो है वो डिफरेंट फ्रूट्स में होते हैं. सो दीज आर ऑल दी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट वी आर ईटिंग इन फॉर्म ऑफ द फूड ना. So through the process of digestion, what will happen? This will happen. They will get simplified. So ये जो complex molecules हैं, they will get simplified. So we're gonna have a look at the whole process of digestion today, and let's see how much we can cover. So digestion, the process by which complex molecules of food are broken down into simpler ones and are used by the body for energy, growth and cell repair is called digestion. तो वो यही कह रहे हैं कि digestion वो process है जिसके थ्रू आपके complex molecules they are breaking down into simpler ones, और उससे जो हमारी energy release होती है, जो the energy that we get from the food, उस एनर्जी को बॉडी जो है वो यूज़ करती है फॉर ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए, एंड सेल जो डैमेज हो जाते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन? सो फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस. तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर वन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे. सेकेंड स्टेप विल बी अपटेक ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम. अब हमने जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर वन में कन्वर्ट कर दिए हैं डाइजेशन के थ्रू, वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो हमारे ब्लड में जाएंगे वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स, देन क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय बॉडी. तो देन जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें डाइजेशन के थ्रू मिले हैं, बॉडी विल मेक द एनर्जी आउट ऑफ दैम. हमें एनर्जी मिलेगी उन सिंपलर मॉलिक्यूल से, उस एनर्जी के थ्रू जो है वो बॉडी डिफरेंट फंक्शंस को फिर परफॉर्म करेगी. we're gonna actually study all of these things in detail. Okay, removal of undigested food from the body, and then क्या होगा कि ये सब गुड थिंग्स हो गई, फूड में से सब गुड थिंग्स ले ली, देन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ऑब्वियसली स्क्वीट आउट हो जाएगी.
So here is the whole human digestive system that you can see. So actually, if we have a look at the system, we can tell that human digestive system is actually a long coil tube, as you can see. So that long coiled tube is actually making the whole digestive system. As we can see that it is starting from the mouth and then leading to the esophagus. ठीक है, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं. Then we have stomach. Then we have stomach is actually going into the small and large intestine, and then anus. So this is the whole like structure of the digestive system and whole track. This is like the whole track. So the digestive system in humans is made up of a long coil tube that start from mouth and ends in anus. So starting from mouth and ends in anus. It is a 10-meter long tube called the alimentary canal or digestive tract. So हम इस पूरे track को क्या कहते हैं? Alimentary canal कहते हैं या फिर digestive tract कहते हैं. The organs that play their role in the digestive system are mouth, stomach, small intestine and large intestine. कौन कौन से मेन ऑर्गन है? माउथ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कि हमारे पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को जो उनसे ऑर्गन टेक पार्ट कर रहे हैं. अदर ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम आर लिवर एंड पैंक्रियाज. एज यू कैन सी दैट देयर इज लिवर and there is pancreas. They both are organs as well, and they have their functions, different functions, but one of the function of them is that they are assisting the process of digestion. और वो कैसे assist करते हैं वो we will discuss everything in detail later. The digestion of food take place at 3 sites in the digestive tract. तो कहाँ कहाँ पर होती है? माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये 3 वो साइट्स हैं जहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, लेट्स स्टडी हाउ. फर्स्ट क्या है हमारा? माउथ. सो हियर इज द माउथ. ठीक है, वी ऑल नो दैट द माउथ कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरल कैविटी, है ना. एंड वी ऑल्सो नो दैट इट हैज़ गॉट saliva. So let's have a look at what's written in it. The journey of food starts in the mouth. The food we eat is selected by sense of sight, smell and taste. जो हम फूड खा रहे होते हैं वो कैसे सिलेक्ट होती है? हमारी सेंसेस देखने की, सेंस से स्मेल करने की, टेस्ट करने की. अगर हमें कोई चीज़ इनअप्रोप्रिएट लग रही है तो व्हाट वी डू नॉट ईट इट. इफ़ एनी अनप्लेजेंट मटेरियल लाइक डस्ट और स्टोन इज फाउंड इन द फूड, इट इज़ रिजेक्टेड. After selection, the food is crushed and ground by teeth. Select हो गई food, we have entered the food into our mouth, तो क्या होगा? Teeth will start chewing it. और chewing से क्या होगा? Food will be crushed. पीस जाएगी वो, grounded form में हो जाएगी. और इससे होता क्या है एक्चुअली? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द इंजाइम्स. एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम फूड को क्रश कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में फूड, आप ये समझ लें कि उसका एरिया ज़्यादा हो रहा होता है ना. आप एक निवाला लिए, देन यू स्टार्ट चूइंग इट, तो क्या हो रहा है? वो मीन्स फैलता जा रहा है ना, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है. तो उससे क्या होगा? एंजाइम्स ईजीली उसके साथ ऊपर एक्ट करेंगे और फिर हेल्प करेंगे डाइजेशन में. ओके, द ग्राउंड फूड यानी कि पीसी हुई जो फूड है इज़ देन मिक्सड विद द स्लाइवा. ठीक है, क्या होगा? जब फूड हमारी ग्राइंड हो जाएगी तो स्लाइवा, हमारे जो थूक है वो इसके साथ मिक्स होगा. और वो स्लाइवा कहाँ से आता है? हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम देख तो नहीं सकते, बट दे आर प्रेजेंट. ठीक है, अब दे आर समवेयर, दे आर प्रेजेंट. और स्लाइवा इज़ अ स्लाइमी लिक्विड एज वी ऑल नो दैट लुब्रिकेट्स. तो इसका पर्पस क्या है? एक तो ये पर्पस है कि लुब्रिकेट करेगा फूड को, मीन्स कि उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा ताकि फ्रिक्शन ना हो. फ्रिक्शन होगी तो वो ऑब्वियसली आगे फिर एसोफेगस में कैसे जाएगी? तो लुब्रिकेट करेगा. एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मुश. मुश भी क्या है? ये सिंपल मीन्स के सिंपल हुई जो हमारी क्रश्ड हुई फूड है उसमें जब स्लाइवा मिक्स हो जाएगा तो वो पूरा एक जो गीला सा वो जो एक बनेगा उसको हम वो फिर मुश करेंगे. ठीक है, सो दैट इट कैन पास थ्रू द एसोफेगस. तो क्या पर्पस है इसका? क्यों लुब्रिकेट कर रहा था? कि एसोफेगस में, एसोफेगस इज हेयर इज योर एसोफेगस. ठीक है, ओके. इट ऑल्सो कंटेन, एक तो इसका ये पर्पस हो गया कि वो लुब्रिकेट कर रहा है.
दूसरा क्या पर्पस है सलाइवा का? दूसरा पर्पस ये है कि इट इज़ प्रोवाइडिंग अस विद दिस एंजाइम एमाइलेज। तो एंजाइम्स ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मींस कि किसी रिएक्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में मींस कि फूड को तोड़ने फोड़ने में, ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। तो हमारा सलाइवा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एमाइलेज एंजाइम प्रोवाइड कर रहा है। एमाइलेज का क्या पर्पस है? इट विल ब्रेक डाउन स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सॉल्युबल शुगर में, ऐसी शुगर जो कि हल हो सके, और उसका क्या नाम है? मैल्टोज। दैट इज़ द नेम ऑफ द शुगर जिसको स्टार्च, हमारा जो एमाइलेज है दैट इज़ कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू मैल्टोज। ओके, अच्छा अब क्या होता है? The tongue also plays a very important role in the digestion. It pushes the food around the mouth for better chewing. तो आपको पता है जो भी हमारा नवाला या जो भी फूड होती है उसको यहाँ वहाँ मूवमेंट कैसे होती है? ऑब्वियसली टंग कर रही होती है। So the partially digested food is rolled by the tongue into an oval lump called bolus. Here you can see the bolus. This green part, दिस ग्रीन थिंग इज़ बोलस। बोलस क्या चीज़ है कि हमारी जो फूड है जिसके ऊपर स्लाइवा आ गया है, और स्लाइवा ने उसको मीन्स के ब्रेक डाउन कर लिया है हमारे स्टार्च को, और जो बिल्कुल क्रश ग्राउंड हो के, और बिल्कुल मीन्स कि एक नरम सा एक लोब सा बन गया है, ये ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं, उसको हम बोलस कह रहे हैं। ठीक है, लंप सा है ना, एक ये लंप सा है, ओवल लंप है। क्या शेप है इसकी? ओवल सी है लंप। वो तो आपको खुद भी फील होता होगा स्वेलो करते हुए कि ये एक मीन्स राउंड सा एक लंप सा बन जाता है ना, दैट इज़ बोलस। बोलस इज देन swallowed बाय अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग। फिर क्या होता है? बोलस बिल्कुल एंड पे जाके हमारे इस जगह पे जाके यू कैन फील वाइल swallowing द बोलस कि हमारी टंग क्या होती है? अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होती है उस टाइम टंग की। ओके, अच्छा उस टाइम फिर तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें क्या क्या होती हैं? तीन चीज़ें ये होती हैं कि ड्यूरिंग swallowing, एक तो ये होता है कि ये हेयर इज़ योर बोलस, ये आफ्टर स्वेलविंग मीन्स कि स्वेलिंग ड्यूरिंग स्वेलविंग की ये पिक्चर है, आपका बोलस यहाँ पर है। आप देखें कि एक ये काम होता है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है पाइप, दिस इज़ योर विंड पाइप। विंड पाइप क्या है? जिसमें से आपकी हवा जाती है जो आप ऑक्सीजन लेते हो, या फिर ये आपका एयर का ट्रैक है। तो वी डोंट वांट आवर फूड टू एंटर इन दिस ट्रैक। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर छोटी सी कैप होती है इस पाइप के ऊपर, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटस। एपिग्लोटस फ़ौरन से इस पाइप को ढक लेता है सो दैट दिस बोलस कैन नॉट एंटर इनटू दिस पाइप, और सेफली जो है ये सिर्फ एसोफेगस में ही जाए। एक तो ये काम होता है। दूसरा ये होता है कि सॉफ्ट पैलेट ब्लॉक्स द नेज़ल कैविटी। ये देखें, ये सॉफ्ट सी एक पैलेट है जो कि ये पूरी नेज़ल कैविटी को ब्लॉक कर रही है, यानी कि बोलस हमारा नेज़ल कैविटी में भी ना जाए। थर्ड चीज़ ये होती है कि टंग ब्लॉक्स दी ओरल कैविटी। ये देखिए टंग, ये तो आपको खुद भी फील होता होगा कि आप पूरी ओरल कैविटी को ब्लॉक कर देते हो। ये पूरी चीज़ फिर ये ऐसे क्लोज हुई होती है जब आप फूड को swallow कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है एसोफेगस में क्या होता है, वी विल स्टडी दैट लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लास। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।